All right, I think we're ready to go. Hello, everyone. Welcome to this another episode of Jeevan Trust webinars. This is our third webinar, and we have somebody from our very own Albinism India group, Ms. Ambani Garg. And today we'll be talking about nutrition, health, and impact of nutrition on our health. So let me introduce Ms. Ambani Garg to you. Um, Ambani Garg is a nutritionist and therapeutic designer. She has done MSc in Foods and Nutrition from CCS University. She also holds a degree in BSc in Clinical Nutrition and Dietetics. She's a gold medalist in this. Um, she has done internship from Gangaram Hospital and Metro Hospital. She also has a 5-year experience in this field, having worked as a lecturer for 1 year in PG College, Meerut, and she is presently working as a slimming head at Clinic Dermatech in the Agra branch, and she's also running her own e-clinic, Ambani Garg Nutritionist. She's also there on Instagram, so you can always follow her for more advice. And let's begin the session for today. Welcome, Ambani. Very happy to have you here. Ishta, can you take over and let's go through the house rules? Hello, everybody. Welcome again to another session. Today's session is going to be all on nutrition and health. So we'll start in the beginning for the first half an hour. Ambani will take us through the basics of nutrition and how we can lead a better lifestyle. Followed by a question answer session where Priya will support you all through asking all your questions to Ami. And then once we finish our session, we will continue to have our usual get together and see how everybody is. So please stay on, and I hope you enjoy today's session. As always, I am going to ask you कि आप सब अपने microphone को mute पे डालिए while Ami is talking, just to avoid any sort of disturbance. Cameras up to you. You can leave them on, leave them off, entirely up to you as long as your microphone is muted. There is a chat box function in Zoom. So अगर आपको कोई comments है, questions है during the webinar, please post them in the chat box. Introduce yourselves, say hello. वहाँ पे अच्छा खासा conversation चलेगा. Share your ideas. All great discussions happening down there. Another little reminder that this session is also being recorded, just like the previous sessions. So just to let you know that that's what we'll be doing. Over to you, Ami. Thank you, Mr. Anubhav, Ms. Priyanka, and Ms. Ashita for giving me this platform to today that we'll be discussing about nutrition and health education. But before this, I would like to discuss about how the society or how the people are actually focusing on, instead of health, they are focusing on body image. Ki I want to be look beautiful. It's not only about food and nutrition today, but we'll be discussing overall health. कि क्या कैसे हम लोग एक छोटी सी चीज का स्ट्रेस ले लेते हैं एंड वो किस तरीके से हमें अफेक्ट करता है एंड वेदर इट्स अबाउट नॉर्मल कोई डिसऑर्डर है या नॉर्मली कोई अपने आप को ब्यूटीफुल लगना है, स्लिम लगना है, या इफ ही हैज लाइक नॉर्मल, इफ आई टॉक अबाउट कि उसका तो वेट बहुत ज्यादा है, आई वांट टू बी लाइक उसको थोड़ा वेट कम करना चाहिए. तो दीज थिंग्स शुड नॉट बी देयर. हम जैसे हैं, वी नीड टू एक्सेप्ट आवरसेल्फ कि हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम अपने आप में बेस्ट होंगे. एंड अगर हमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, देन इन दैट केस ओनली द सेकंड पर्सन इज गोइंग टू एक्सेप्ट अस. अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम सामने से उम्मीद करते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करे, देन दैट वोंट बी पॉसिबल. Well, proceeding to this healthy lifestyle to a better living. Next slide, please. Thank you. Before health, everything is key food.
फूड ही हमारा सब कुछ है जो हमारा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स या हेल्थ डिसाइड करता है. एंड एज पर WHO वी ऑल नो कि हेल्थ इज बेसिकली व्हेन यू आर फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ डिजीज. तो अब वो हेल्थ हमारे हाथ में है. हम फूड्स तो ले रहे हैं अभी, हम वॉट एवर द edible thing जो भी हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, whatever it is giving nutrients या nutrition to proceed different functions for growth, for development or for the maintenance of the body. So in that condition all these will work in that कि अगर आप proper तरीके से hello प्रॉपर तरीके से अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप मेंटली फिट हैं, देन इन दैट कंडीशन ओनली आपका वो फूड आपको न्यूट्रिएंट्स देगा, वो न्यूट्रिशन देगा. एज आई मेंशन कि एनी एडिबल सब्सटेंस दैट वी कंज्यूम टू फुलफिल आवर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज अ फूड. सो फूड वही है जो भी हम खा रहे हैं, जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, दैट इज बेसिकली अ फूड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Next is, as I said, ki nutrition, nutrients, that is all about food. Nutrition is basically a combination of processes जहाँ पे आपका absorption है, metabolization है, जहाँ पे आपका digestion है, all these processes जहाँ मिल रहे हैं for the growth, for the development, for the maintenance of the body, जो भी हमारी चीज़ें हैं उसके लिए हमें nutrition requirement है. अब न्यूट्रिशन को हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, एक हमारा स्पेसिफिक अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स के लिए कि इन अ डे we need this much of calories in a day, this much of protein, this much of calcium, iron. ये हमारे different nutrients हैं basically जो हमें एक दिन की requirement fulfill करने के लिए चाहिए होते हैं. So these are basically your components of food. This is your nutrient. Let's come to a balanced diet. हमने बहुत सुना है कि balanced diet लेनी चाहिए, balanced diet लेनी चाहिए, but balanced diet शायद ही हम में से कोई रेफर करता है, क्योंकि किसी ने आज खाली राइस ले लिया, किसी ने खाली कार्ब्स ले लिया, प्रोटीन ले लिया, बट इट इज नॉट सो. आपको इन सिंगल मील, हम दिन की जो 3 मेजर मील लेते हैं उसमें जो हमारी फर्स्ट मील, सेकंड मील, थर्ड मील जो भी है, इट शुड बी बैलेंस्ड. उसमें कार्ब्स भी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें हेल्दी फैट भी होना चाहिए, उसमें आपका फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स फॉर्म में भी होना चाहिए. आई हैव मेंशन वन फूड पिरामिड है, यू कैन सी दैट, जहाँ पे दैट विल टेल यू कि आपकी जो प्लेटर है, आपका जो आपकी खाने का प्लेट है, उसमें सबसे ज्यादा क्या मेंशन होना चाहिए. नाउअडेज व्हाट हैपन कि ज्यादातर लोगों ने अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स एलिमिनेट करने स्टार्ट कर दिए, या दे आर पुटिंग इट टू, जैसे हमारा 60% कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट में होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट दे आर कीपिंग इट फॉर 20 to 30% ओनली, जो बहुत कम है, क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत मेजर फंक्शंस जो हैं उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड है, बट दे आर फॉरगेटिंग दैट. सो व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम यू आर हैविंग योर मील, प्लीज फोकस कि मेरी डाइट में कार्ब्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, फैट्स भी, एसेंशियल फैट्स जो आपके हेल्दी फैट्स हैं वो भी हो, एंड अदर देन फाइबर्स एंड ऑल, सब चीज एक बैलेंस्ड फॉर्म में हो. दिस विल बी कॉल्ड एज योर बैलेंस्ड डाइट, दैट इज इंक्लूडिंग ऑल फूड ग्रुप्स. नेक्स्ट प्लीज. Well, objectives of nutrition. Why actually we always talk about nutrition and nutrition. हमें न्यूट्रिशन एज इन क्यों चाहिए, कभी हमने इस बारे में सोचा न्यूट्रिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोगों तक क्यों पहुंचाएं. इट इज कि people should be aware कि how much they have to eat, what to eat, and in what form they to eat. So this is up to you before anybody else कि आपको देखना है कि जो आप ले रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, that should be properly balanced, that should be properly fit. Nutrition not only include food but as well, अगर आपने कोई food लिया है and you are just input, you are doing just input, आप just ले रहे हैं और output नहीं हो रहा, तो in that condition obviously that will lead to obesity or any other diseases too. या किसी भी चीज का excess लिया या किसी भी चीज का deficiency हुआ, then in that situation also it will lead to some ill health effect. So better है कि whenever you are having, सब चीज खाइए बट एक लिमिटेड पोर्शन में खाइए. नेक्स्ट इज व्हाई न्यूट्रिशन वी रिक्वायर्ड इज फॉर द फिजिकल, फॉर द मेंटल डेवलपमेंट एंड फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. सो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट ऑब्वियसली हमारा कार्ब्स, प्रोटीन्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए. एंड सिमिलरली जो
आपका बेस हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वी थिंक कि हमें वो बहुत कम अमाउंट में चाहिए, वी यूज टू निगलेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम कि ओके तो थोड़ा सा चाहिए, लेट्स फॉरगेट इट। बट अगर वो थोड़ा चाहिए बट दे आर फंक्शनिंग, दे आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन आवर बॉडी, तो वो suppose as I talk about calcium, or if I talk about iron, or other minerals, magnesium or copper, so these are the minerals जो हमें बहुत कम amount में चाहिए होते हैं, but they play a major role for the physical and development of the body, and साथ ही साथ जो हमारे macro nutrients हैं उनको वो support करते हैं कि आपको ये भी लेना है, एंड उनका जो फंक्शन है, मेजर रोल जो वो प्ले करते हैं, सॉरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो फंक्शन है वो भी वो प्ले करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो नेक्स्ट टाइम आप फोकस कीजिए कि अपना न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर लेना है। साथ ही साथ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कि आप सिर्फ डाइट पे या सिर्फ हेल्दी ईटिंग पे फोकस मत कीजिए, फोकस ऑन एक्सरसाइज ऑल्सो। फिजिकली फिट रहने का भी हमें करना है, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इंक्लूड दीज थिंग्स इन योर डेली लाइफ एज ए नॉर्मल रूटीन, क्योंकि अगर आपने ये नॉर्मल रूटीन में फॉलो अप नहीं किया देन इट कैन लीड टू अ स्ट्रेस, और इट कैन लीड टू, अगर इट्स वेरी कॉमन कि नाउ अडेज हमें छोटी छोटी बात का स्ट्रेस होने लगता है, एंड we are on medications for this कि okay आज मुझे इतना स्ट्रेस है, मुझे वो वाली मेडिसिन लेनी है, उसके बिना मेरा काम नहीं होगा। सो दिस थिंग शुड नॉट बी देयर कि आज छोटी छोटी चीजों के लिए हम मेडिसिन पे डिपेंड है। इंस्टेड जब आपके पास ऑलरेडी नेचुरल फूड्स अवेलेबल हैं, जब आप उनसे स्ट्रेस कम कर सकते हैं, जब आप उनसे अपनी जो भी डिजीजेस हैं उन अगर आप उनको सही अमाउंट में लें तो आप उनसे कम कर सकते हैं, देन व्हाट्स द नीड टू गो फॉर द सप्लीमेंट्स, व्हाट्स द नीड टू फॉर द एक्सेसिव सप्लीमेंट्स, डोंट गो फॉर। So these things you need to be care, and yes, how much energy, as I told you कि how much calories, how much protein or other nutrients you have to take, इसका भी एक इसका भी एक हमारा उद्देश्य होता है कि हम आपको बताएं कि आपकी डाइट में, आपकी प्लेट में एक टाइम की जो आप खा रहे हैं उसमें क्या क्या कितनी कितनी चीजें होनी चाहिए। So our aim is to provide you information about the nutrition, about your health, about your physical activity, all these things. Next slide please. Every human being is the author of his own health and disease, is a well-known saying by Buddha. Obviously, अगर हम ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली हम परफेक्टली फाइन रहेंगे, बट अगर हमने ही अपनी हेल्थ का या ध्यान नहीं रखा, या हमने कुछ भी जंकी ले लिया, या कुछ भी एक्सेस में खा रहे हैं, तो दैट विल लीड टू अ डिजीज और इल हेल्थ। नेक्स्ट प्लीज। Let's come to nutrients. What is nutrients? What are the as I told you, अभी मैंने last में mention किया कि nutrients basically are those components of food जो हमें चाहिए होते हैं in a limited amount to perform different functions in our body. They perform major to minor functions. छोटा सा अगर एक नेल भी हमारा एनलार्ज हो रहा है, अगर हमारा नेल्स भी बढ़ रहा है, या बाल हमारे हेयर फॉल हो रहा है, या कुछ भी है, all these things actually related to your nutrients, related to your nutrition, कि आप कितनी अमाउंट में क्या ले रहे हो। Let's come to, this is classified in two forms. One is your major nutrients, one is your micronutrients. Macronutrients is basically जो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, एंड जो हमारी एनर्जी और ग्रोथ की डेवलपमेंट में हमें हेल्प करते हैं, लाइक योर कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक योर प्रोटीन्स, लाइक योर फैट। दीज थ्री आर योर बेसिक मेजर योर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड वन इज योर वाटर, ऑब्वियसली without water there is a disturbance. Hello, yes, so these are three basic nutrients, that is your carbohydrates, proteins and fat, जो आपके major nutrients हैं, जो आपको anyhow आपके platter में सबसे ज़्यादा amount होना चाहिए। हमारी एक ideally decided है that 60% of carbohydrates should be there, 10 to 20% of your protein should be there, and 20 to 10% of your fat should be there. So these things should be there in your platter whenever you are having food. Let's come to your micronutrients. Micronutrients हमारे वो हैं जो हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट एज आई टोल्ड यू वो बहुत ही मेजर फंक्शन रोल प्ले करते हैं, एंड इन केस अगर वो आपने स्किप कर दिए या उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, देन इन दैट कंडीशन आपको बहुत हाई पे करना होगा। एज एन छोटी सी डेफिशिएंसी, सपोज कैल्शियम की डेफिशिएंसी, देन इट कैन लीड्स टू रिकेट्स इन चिल्ड्रन, देन इट कैन लीड्स टू ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स। सो
एनीमिया अगर हो जाता है, अगर आपकी आयरन डेफिशिएंसी है या विटामिन बी डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी है, तो इन दैट कंडीशन आपको अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे भी फोकस करना है, एंड दैट आर योर vitamins and minerals. Next slide please. Let's come to your macronutrients first. Starting with carbohydrates. As I told you, carbohydrates हमारा सबसे मेजर है जो हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है हमारी डाइट में, क्योंकि this is actually providing a major energy. अगर हम scientifically बात करें, obviously fats gives 1 gram of fat is giving you 9 calories, whereas carbohydrate is giving you 4 calories in 1 gram. But carbohydrate as well is giving you fibers also. अगर हम डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन सा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वेदर इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और योर सिंपल कार्बोहाइड्रेट. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जो आपका शुगर हो गया, जैगरी हो गया, जाम जलीज हो गया, या फिर आपका हनी हो गया, ऑल दीज आर योर simple sugars. And whereas complex carbohydrates is your wheat, आपका जो आपकी wheats हो गया या आपका lentils वगैरह हो गया, even जो आपके tubers हो गए, all these will include your carbohydrates, that is a complex carbohydrates. Next please. Proteins. Before proceeding protein, as I told you, next time आपकी प्लेट में जब भी कार्बोहाइड्रेट, आप चपाती, मैंने अगर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ अभी, तो मोस्ट ऑफ यू विल से कि ओके मैं कार्बोहाइड्रेट में चपाती फॉर्म ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, चपाती ले रहे हैं, दैट इज ऑब्वियसली अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज योर पोटैटो. बट हमारी प्लेटर में ज्यादातर आजकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ने जगह ज्यादा ले ली है कंपैरेटिवली टू चपाती और राइस. पीपल आर स्किपिंग these chapati or rice from their platter, but this should not happen. आप सोचते हैं कि rice will put on weight, or rice should not be taken in diabetes, or rice have lot of carbs, but no, rice is also a good source of protein also. So don't eliminate rice from your diet, do include that. Let's come to proteins. Protein, as we all know, it's a building block of the body that helps in repairing of tissues, it helps in the essential growth, maintenance, and as well replacement of the body cells. साथ साथ जो हमारी मसल्स है, हमारा नेल्स है, हमारा हेयर है, स्किन है, इन सब में प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. एज सेड कि अगर हमारा हेयर फॉल हो रहा है तो ऑब्वियसली सम और अदर वे आपका प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी का, इट्स नॉट सफिशिएंट. अगर आपको इन अ डे एज पर योर अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, अगर सपोज 60 ग्राम प्रोटीन्स चाहिए, so you are not having that much of protein, or might be you are not having quality of protein, or could be possible ki you are having protein but something is hindering in its absorption. So try to find out ki what's the reason, kya jo meri combination hai खाने की वो सही है या नहीं. So that's most important. As in proteins nowadays is like कि लोग especially vegetarians प्रोटीन्स अपना प्रोटीन्स पाउडर्स को फॉलो अप कर रहे हैं. आई विल से कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, इन दैट सिचुएशन यू वांट प्रोटीन, तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट नॉर्मल खाने से आराम से पूरी हो सकती है. लाइक आप सोया इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में, लाइक आप चिया सीड्स इंक्लूड कर सकते हो. नाउअडेज मस्क मेलन इज इन सीजन. मस्क मेलन की जो सीड्स होती हैं, वाटरमेलन की सीड्स होती हैं, दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड फाइबर्स. आप वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग कि मैं प्रोटीन पाउडर्स अपनी डाइट में इंक्लूड करूँ. प्रोटीन पाउडर्स ये तभी रिकमेंड किए जाते हैं इफ यू हैव सर्टेन कंडीशन, इफ यू हैव सर्टेन नेफ्रोटिक इशू, और दैट इज आल्सो अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस और अ डाइटिशियन गाइडेंस. एंड एज वेल नाउअडेज की टीनेजर्स जो हमारे हैं, स्पेशली एज फ्रॉम द 11 to 19 years of age, they want कि मेरी मसल मास हो, and for that they are actually skipping carbohydrate from their diet and focusing more on protein powders. So this thing should not be there, क्योंकि I have come across lot of clients, they are saying कि okay मैं protein powders ले रहा था, and or their parents there कि वो protein powders ले रहा था, and because of that doctor के पास हम लोग गए, he is admitted for the kidney failure and issues. So अगर आप ज़्यादा protein powders लेते हैं तो that can lead to your kidney disorders. So प्लीज आप उस पर ध्यान दीजिए. अगर आपने प्रोटीन पाउडर्स लिया है तो उसका क्या क्या कंटेंट है. आप अपने आप से कोई भी प्रोटीन पाउडर ऑनलाइन ऑर्डर करा, अमेजोन से किया, डोंट डू दिस. प्लीज आस्क योर डाइटिशियन और आस्क योर हेल्थ कोच और योर डॉक्टर.
they will recommend you ki which protein is required, how much protein is required, do you really require protein powder or not. Next time do focus on that, please. Next slide. Thank you. Fats, as we all know, fats are very essential, very essential, क्योंकि जो भी हमारे fat soluble vitamins हैं, उसके लिए we need fat. Fat, of course, as I said, it gives you 9 calories per gram, but that you have to find out कि आपको healthy fat लेना है या आपको unhealthy fat लेना है. It's not ऑब्वियसली हमारा फॉल्ट है, बट साथ साथ फूड इंडस्ट्रीज ने एक हमारे सामने एक क्रिएट कर दिया है एक इमेज की दैट द होममेड बटर or the nuts, the cashews, the almonds or the walnuts and all these things have high cholesterol. But for your kind information, they have cholesterol, but that is a healthy cholesterol which is required by your body, that is your HDL. So next time अगर आप कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, अगर आप एक नॉर्मल चिप्स का पैकेट देखेंगे जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू टर्न कीजिए, यू विल फाइंड कि उसकी जो उसमें फैट का कंटेंट है, उसमें ट्रांस फैट दे यूज्ड टू मेंशन, उसमें वो 0 लिखेंगे या उसमें वो कुछ नहीं लिखेंगे, या हाइड्रोजनेटेड ऑयल होगा. ऑल दीज फैट्स आर बैड फैट्स, दीज आर नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड. हमारी बॉडी को हेल्दी फैट्स की जरूरत है जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकें. इवन यू वॉन्ट बिलीव, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसका एक रीजन फैट्स भी हो सकता है. अगर आपकी डाइट में फैट्स बिल्कुल नहीं है, हेल्दी फैट्स नहीं है, या आपकी डाइट में बहुत एक्सेस फैट है, दोनों कंडीशन में आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. क्योंकि जो आपका फैट है दैट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव द पैरालिस्टैटिक मूवमेंट, जो आपका फाइबर की वजह से बढ़ता है. तो वो एक बाउल मूवमेंट, स्मूथ बाउल मूवमेंट के लिए आपको फैट की जरूरत होती है. हैव होममेड बटर, हैव योर एवोकाडो, हैव योर नट्स जो आपके घर में नॉर्मली मिल जाते हैं. कैश्यूज, एज आई सेड, कैश्यूज लीजिए, बादाम लीजिए, अखरोट लीजिए, यहाँ तक कि कोकोनट, आप ड्राई कोकोनट या फ्रेश कोकोनट दोनों ले सकते हैं. आप उसको डायरेक्ट लीजिए, कोकोनट ऑयल लीजिए कुकिंग में, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिफरेंट ऑयल्स. आप नॉर्मल डिपेंड्स ऑन मस्टर्ड ऑयल फॉर कुकिंग और फॉर कोकोनट ऑयल, या फिर घर का देसी घी. घर का देसी घी इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी. यस, अगर आप घर का घी प्रेफर करते हैं, दैट इज अ क्लैरिफाइड बटर ऑल्सो, तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल है. As I told you, margarine and all these, I have mentioned these are the source of fat, but try to as much like उसको avoid करने की कोशिश कीजिए, don't have in much form. Please next slide. Water, yes, the most important nutrient. हमारा जो बॉडी है दैट इज ऑलमोस्ट 60% ऑफ वाटर. हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 60% हमारा वाटर है, एंड दैट इज ऑब्वियसली, अगर हमारी बॉडी में वाटर है देन प्रॉपर अमाउंट में है, इट्स अ हेल्दी बॉडी. यू विल फाइंड कि ओके मेरे को एक्ने हो गया है, या मेरे को स्टमक डिस्कम्फर्ट है, या मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन का इशू है. मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स इज लाइक बिकॉज ऑफ वाटर एज वेल, कि अगर आपकी डाइट में पानी का प्रॉपर नहीं है इनटेक और आपका आउटपुट बहुत ज्यादा है, क्योंकि एज एन आपका जो पर्सपिरेशन है, स्वेटिंग है या सलाइवा है, ये डिफरेंट तरीके हैं जहाँ से ये वाटर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, इवन यूरिन ऑल्सो. सो फॉर दैट हमें उसका इनपुट प्रॉपर रखना होगा, तभी हमारा बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहेगा. सो इफ यू वांट कि स्पेशली समर्स है, हाइड्रेशन बना रहे, डिहाइड्रेशन ना हो, इन दैट कंडीशन आपको वाटर अपनी डाइट में पूरा लेना है. स्पेशली 8 से 10 ग्लास तो आपको एक दिन में पानी चाहिए ही चाहिए. and that too also depends on your physical activity. Suppose आप बहुत ज़्यादा heavy workout कर रहे हैं, और you are a heavy worker or a moderate worker, then in that condition also आपको requirement 8 to 10 glass से भी ज़्यादा हो जाता है. So according to your activity, have water. One more thing, अगर आपकी body बहुत देर हो गया, okay now you are feeling thirsty, आपको प्यास लग रहा है, तो that's the साइन कि आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो गई है. दैट्स द लास्ट स्टेज कि अब मुझे पानी चाहिए, तो मतलब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती जा रही है. दैट्स द साइन. सो बिफोर दैट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर अदर बेवरेजेस. मेक वाटर एज योर फ्रेंड कि ओके मुझे हर घंटे में पानी पीना है या हर 2 घंटे में पानी पीना है इफ आई वांट टू बी हेल्दी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. डाइटरी फाइबर.
हम सब बहुत सुनते हैं कि फाइबर हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, फाइबर वेट लॉस के लिए हेल्पफुल है, फाइबर एज इन ऑब्वियसली रफेज इट इज आल्सो कॉल्ड एज, जो हमारा बल्क होता है, स्टूल को इजी पास आउट होने में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करता है, इवन अदर डिजीजेस टू. बट please be careful if you have any GI, that is a gastrointestinal कोई भी आपको प्रॉब्लम है, देन इन दैट कंडीशन आपका फाइबर का भी कैटेगराइजेशन है, फाइबर आपको उस टाइम देख कर लेना होता है, दैट इज अंडर योर, एज आई सेड कि डॉक्टर, आपको डॉक्टर के अंडर किसी के एडवाइस से या डाइटिशियन के एडवाइस से आप तभी फाइबर लेंगे. सपोज यू हैव अल्सर्स और यू हैव पेप्टिक अल्सर एज एट, तो इन दैट कंडीशन आपको फाइबर थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में लेना है. अदरवाइज for a healthy heart, for healthy, for weight loss, for a normal healthy living, you should have a good amount of fiber in your diet. And the sources of fiber is your आपका गेहूं as in wheat bran, आपका जो होल व्हीट हो गया, लेंटिल्स हो गया, आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, स्पेशली उनके छिलकों में. हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो खा देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनको पील ऑफ कर देते हैं. नहीं, द मोस्ट ऑफ द फाइबर इज प्रेजेंट इन देयर पील. आप उनके छिलके जो हम फेंक देते हैं, एक्चुअली इट इज वेरी न्यूट्रिशनली रिच इंग्रेडिएंट. आप उसको लीजिए, उसको हमें फेंकना नहीं है. वेदर योर कुकुम्बर पील, वेदर योर तोरी पील, वेदर योर एनी even pumpkin peel, so don't throw them away, instead wash them properly and use them. As well as I said, dietary fiber help you for treating your constipation. आपको bowel movement बहुत smooth करेगा, साथ ही साथ एक जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है उसको reduce करेगा, that is high कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, and lower LDL, that is your bad कोलेस्ट्रॉल, उसको कम करेगा. Next slide please. Let's come to micronutrients. As I said, micronutrients are very important because they used to do वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी. जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स है, उनका जो फंक्शन है, उसके फंक्शन में भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं. एज वेल अगर उनका डेफिशिएंसी हो गया, एज आई सेड, तो बहुत मुश्किल होगा आपको कवर अप करना. सो बेटर है हैव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एंड फोकस ऑन कि अगर थोड़ा सा भी मेरे को डाउट लग रहा है, बहुत सारे साइन होते हैं अगर आपके बॉडी में सपोज बहुत ज्यादा आपको नील दिख रहे हैं, नील पड़ जाते हैं हमारे जैसे, सो अगर वो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, दैट टेल्स कि आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है. अगर आपको नेल्स में वाइट साइन है तो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है. दीज आर द साइंस. हमारी बॉडी अपने आप ही आपको साइन दे देती है कि आपकी बॉडी में इस चीज की कमी हो गई है. तो यू नीड टू चेक इट कि ओके ये निशान अगर मेरे हैं तो किस वजह से है. आपको वही पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं इस चीज की कमी है. Well, let's come to your vitamin classification. First, micronutrient is your vitamin, and vitamin obviously is classified in two forms. One is your fat soluble vitamins and one is your water soluble vitamins. Fat soluble is जो आपके fats में easily solubilize हो जाए, and साथ ही साथ जो intestine में आपके होते हैं, that is your vitamin A, D, E, K. And if I come to water soluble are your जो easily आपके blood में आराम से चले जाते हैं and excrete out भी बहुत आसानी से हो जाते हैं. So please focus more on vitamin, your water soluble vitamins, कि उनकी deficiency ना हो, क्योंकि वो बहुत easily आपकी body से यूरिन के थ्रू पास आउट भी हो जाते हैं जितना absorb होना है. Next is, next slide please. Fat soluble vitamins, vitamin A, as it is helping in obviously vision health को improve करता है. vitamin A जो आपकी epithelial cell है, epithelial layer जो होती है, which is first layer on the top of the skin as well below your lungs, your eyes, जो इनके नीचे होती है, this is the epithelial layer जो maintain करता है vitamin A. In our condition also, if I talk about albinism, so albinism के लिए vitamin A is very important, very. Why? As it improves the vision health. क्योंकि and second thing, as it for the skin also, most of the people with albinism and for the normal one also, they have a dry or the patchy skin. That is one reason is कि vitamin A का deficiency है. That's the sign कि okay आपकी डाइट में विटामिन ए की कमी है. दैट्स वाई आपका स्किन बहुत रफी है, बहुत पैची है. दैट्स वन ऑफ द साइन, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स की मेंटेनेंस नहीं हो रही है, तो
दैट्स द रीजन। विजन में एज इट हेल्पफुल, क्योंकि बीटा कैरोटीन वगैरह के सोर्सेज लेंगे आप रेटिनॉल के, देन इन दैट कंडीशन इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। साथ ही साथ जो आपका मेंटल ग्रोथ है उसमें भी विटामिन ए हेल्प करता है आपको प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाता है, व्हाट इट कैन डू इन दैट कंडीशन, आपको नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका जो कंजक्टिवाइटिस है उसका प्रॉब्लम हो सकता है, ड्राइनेस हो सकती है आई में, इचिंग अगर हो रही है तो दैट कुड बी आल्सो बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। एज इन साथ साथ आपका स्किन, एज आई टोल्ड यू कि रफ स्किन हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। सो हैव प्रॉपर विटामिन ए इन योर डाइट, दैट is one of the major fat soluble nutrient। और इसके सोर्सेज आपको इजीली आपको येलो ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल जाएंगे, फ्रूट्स में आपका पम्पकिन हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, इवन आपका जो आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है उसमें भी आपको टू सम एक्सटेंट विटामिन ए मिल जाएगा। एग योक आपका गुड सोर्स है। सो हैव दीज सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड प्रॉपर इवन योर, अगर विंटर्स है तो कैरेट्स है, अभी समर्स है, समर्स में भी हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं विटामिन ए के। ग्रीन्स हमारे पास बहुत अवेलेबल है, कोलोकॉसिया लीव्स होती हैं एक अरवी के पत्ते जिसे हम कहते हैं वो, और साथ ही साथ जो आपकी हम वो आती है हमारी कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर ग्रीन्स को हम यूजुअली फेंक देते हैं, सो डोंट डू दैट। कॉलीफ्लावर ग्रीन्स आपका इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एज वेल एज आयरन, सो उसको प्लीज डोंट थ्रो इट अवे। अभी तो वो फ्री की आ रही है बट कुछ टाइम बाद इट विल चार्ज यू, क्योंकि उसके बेनिफिट्स अनलिमिटेड हैं। So have include these vitamin A sources in your diet, and that will boost up your vision health, as I said, that will boost up your epithelial cells, even उसके रिपेयर में, मेंटेनेंस में हेल्प करेगा। नेक्स्ट प्लीज। विटामिन डी, एज वी ऑल नो कि हम लोग कई बार धूप में नहीं जा पाते हैं, बाहर नहीं हो पाता है। नाउ अ डेज इट इज विद मोस्ट ऑफ द पीपल कि दे आर नॉट एबल टू कम अंडर सन। I'm not talking about summers. Obviously, summers में अगर आप बाहर निकलेंगे तो you will get burned. But in normal days also, अगर summers में आप morning का sun ले सकते हो, that's well and good from 5 to 6 p.m. जो आप, sorry, 5 to 6 a.m. जो आपका morning का sun होता है, अगर आप 10 मिनट भी sun में रह रहे हो, then आपका vitamin D का requirement काफी हद तक पूरा होगा। So please कोशिश कीजिए सुबह 5 से 6 बजे के बीच में 10 मिनट कम से कम आप सूरज की रोशनी लीजिए। एंड एज वी नो कि हम लोग नॉर्मल डेज में हम आफ्टरनून में नहीं निकल सकते हैं, स्पेशली 10 से 3 के बजे 10 से 3 के टाइम पे यूजुअली सनबर्न हो जाता है। देन इन दैट कंडीशन हम लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई है। इवन काफ़ी लोगों में, जो आप सीनियर सिटीजन्स देखेंगे या नॉर्मल आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्योंकि दे आर मोर ऑन गैजेट्स, दे आर मोर ऑन टीवीज, दे आर इन होम, दे आर नॉट प्लेइंग आउटसाइड। तो ये कुछ रीजंस हैं। बट हाउ you can overcome from the vitamin D sources is कि obviously fortified हम लोग को मिल्क मिल रहा है vitamin D का, but if you are non vegetarian then in that condition you will get the egg yolk or the liver or fish you can have for the vitamin D. But if you are non vegetarian then you can have mushrooms, then you can have घर का घी जो आपका proper have you heard of देसी गाय, जो देसी काव होती है, have milk of that, उसका अगर आप milk आपको मिल जाए तो this will help you to overcome from the deficiency of vitamin D. Homemade आपका butter है, आप उसको लीजिए, that will help you from to overcome from the vitamin D deficiency, क्योंकि they are good source of vitamin D. हम लोग बहुत ज़्यादा मिथ लेके बैठ गए हैं कि बटर में या फिर जो आपका नॉर्मल हमारा घोसी मिल्क जो होता है उसमें वो अनहेल्दी होता है, अनहाइजेनिक होता है। बट द थिंग इज़ कि आप उसको, एक ट्रेंड हमारा है, आप उसको प्रॉपर उसको बॉईल करेंगे देन ऑब्वियसली जो उसका बैक्टीरियल प्रॉब्लम है वो वहाँ पे जो उसका बैक्टीरिया अगर है तो वो डैमेज हो जाएगा, वहाँ वो ख़त्म हो जाएगा। बट अगर आप प्रोसेस्ड मिल्क ले रहे हो, सपोज इफ आई टॉक अबाउट एनी पैकेट मिल्क, अमूल हो या कोई और हो, यू आर गेटिंग दैट इन प्रोसेस्ड फॉर्म, और प्रोसेस्ड फॉर्म में दे आर फोर्टिफाइंग विद, बट यू आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल वन। सो अगर आपके पास कोई भी सोर्स है जहाँ से आप नेचुरल ला सकते हैं विटामिन डी, सॉरी नेचुरल दूध ला सकते हैं, प्रॉपर देसी गाय का दूध ला सकते हैं या बफेलो का दूध ला सकते हैं, प्लीज गेट इट एंड हैव दैट मिल्क, बिकॉज दैट इज one of the best source for the vegetarians to have that.
vitamin D in their diet. अगर vitamin D की deficiency हो गई, as I told you, that can lead to rickets, that can lead to osteoporosis and even osteomalacia. And साथ ही साथ एक टिटने है, one of the problem is जब आपको कई बार you will feel कि मेरा हाथ बहुत शिवर कर रहा है, काँप रहा है, या आपके हाथ में एक मतलब एक सन एकदम अचानक से कुछ हो जाता है, then in that situation also it is a sign of vitamin D deficiency जब आपका hands shiver करने लगे. So next time if you notice this, तो आपको आइडिया लग जाएगा, okay, might be I have a vitamin D deficiency. Next slide please. As I mentioned कि अगर बाहर, see this poster is saying कि okay, sun is calling them कि आज I'll give you vitamin D, and here inside person he's sitting, and the mushroom and fish is saying you don't worry, I'm here, I'll give the vitamin D to him. So if you can't, first of all preferably आप vitamin D के लिए source sun को ही prefer कीजिए, but in case you are not able to get the sun rays properly, then in that condition आप mushrooms, आप अदर सोर्सेज फिश या फिर लिवर, कॉड लिवर ऑयल, आप इनकी तरफ स्विच कीजिए, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट. नेक्स्ट प्लीज. Vitamin E, yes, again one of the important fat soluble vitamin. As in, if you find that all these vitamins and minerals, they are very important for all of us, not only albinism but for the every person. Vitamin A, as I said, for improving skin and for your eyes. Vitamin D is for obviously for the absorption of calcium and phosphorus. Vitamin E is जो उसका antioxidant property है vitamin E का, that is helping us कि जो vitamin C है उसका oxidation ना हो. It is helping us कि intestine का oxidation ना हो. इसकी antioxidant property बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से it is helping us कि oxidation हमारी body में take place ना हो. As well it is helpful in proper young skin. अगर आपको you are finding कि मुझे बहुत anti aging हो रहा है, sorry बहुत aging हो रहा है एज से पहले, या रिंकल्स आ गए हैं, सो माइट बी पॉसिबल आपकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है. माइट बी पॉसिबल देयर इज अ लैक ऑफ विटामिन ई, विटामिन सी इन योर डाइट, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द premature aging and as well as for the wrinkles and dry skin. So if you have such thing, then focus on vitamin E as well. और साथ ही साथ even your vitamin E is if there is a deficiency, then it can lead to abortion, then it can lead to even जो हमारा बेबी होता है, fetus होता है, उसके growth के लिए, उसके sex hormone की development के लिए we need vitamin E. So if any pregnant lady is watching this video, please focus on your vitamin E also. Most of the time we used to neglect, but it is very important. That will help you to develop your sex hormone in your fetus as well. For the kids also, for the brain development and more, have good amount of vitamin E in your diet. That is obviously from the whole grain oil जो होता है आपका whole germ oil, that wheat germ oil, that is a richest source of vitamin E. Include in your diet on daily basis. That is going to help you out. Next slide please. Vitamin K, and we all know it's very like its major function is for the blood clotting. Obviously अगर आपका vitamin K का deficiency हो गया, then it can lead to a thinning of the blood. Usually हम लोग देखते हैं adults में कि they are on warfarin or they are on medications of blood thinning. So that is because this only कि blood clotting बहुत ज़्यादा हो रहा है. So in that condition as well आपका विटामिन के का कभी deficiency rare ही you will find, because जो intestine है that is synthesizing vitamin K itself. And as well all the greens, or I should say most of the greens, have vitamin K in their as their content, as a nutrient. Even if you talk about banana, if you talk about mushrooms, garlic, they all are good sources of vitamin K. All the greens are the good sources of vitamin K. That is very helpful in this. Next please. Water soluble, let's come to water soluble vitamins. As I said, it is very important. Water soluble is
बहुत इजीली आपका एब्जॉर्ब भी हो जाता है, उतनी ही आसानी से आपका एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है. सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन बी एंड विटामिन सी. एंड बी इज, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, बी कॉम्प्लेक्स. एज आई सेड, इफ आई टॉक अबाउट विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, उसकी बहुत लार्ज वेराइटी है. इट इज़ लाइक कि विटामिन बी वन, थायमिन हमें चाहिए, राइबोफ्लेविन हमें चाहिए, नियासिन हमें चाहिए, हमें फॉलिक एसिड चाहिए, वी नीड फ्लेविन, वी नीड ऑब्वियसली B12 एंड बायोटिन. एंड नाउ डेज यू विल लिसन कि B12 की डेफिशिएंसी या बायोटिन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलती है. ज़्यादातर इफ यू लाइक गो टू द डॉक्टर, ही विल आस्क यू, ओके पहले अपना विटामिन B12 का और विटामिन डी का टेस्ट करा लो, देन आई विल चेक नेक्स्ट. Or most of the people are on medication of the or supplements of the B12. That is why, because vitamin B complex performs a lot major functions in our body. They are performing metabolization, helping in the metabolization of carbohydrates. They are helping in the skin treatment. Even riboflavin, if I talk about, if you have a glossitis जहाँ के cheeks sorry lips के sides में cut हो जाते हैं या redness हो जाता है skin में lips के around, or that is called as chillosis or your glossitis. These are because of the vitamin B complex deficiency. Even beriberi you have heard of, जहाँ बच्चों में डिहाइड्रेशन वगैरह, दैट इज ऑब्वियसली ड्राई एंड वेट वेरी वेरी. सो डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है या आपके इन्फेक्शंस हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ बी विटामिन कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी. आपको प्लेग्रा का इशू होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी. सो ऑल दीज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स परफॉर्म्स अ मेजर रोल फंक्शन. हम लोग कई बार क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ही कैप्सूल्स ले रहे हैं क्योंकि दे आर इन वेरी लिमिटेड अमाउंट बट performing a very major function. So you need to take a good amount of B sources, vitamin B complexes from the diet as well, as in from the whole grains, as in from the eggs, as in from lentils, even from the riboflavin के sources आपके milk and milk products में, especially milk, उसमें जो येलो कलर होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ राइबोफ्लेविन. एंड कीप दिस इन माइंड, जो राइबोफ्लेविन आपका सोर्स है, आपका जो विटामिन है, वो सन के कांटेक्ट में आते ही वो डैमेज हो जाता है. तो कीप दिस इन माइंड कि अगर आप कभी मिल्क या कुछ लेकर आ रहे हैं तो उसको कवर्ड फॉर्म में ही लेकर आएँ, बिकॉज इट कैन डैमेज द राइबोफ्लेविन और वहाँ वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. इफ आई कम टू, एज आई सेड, कि विटामिन फॉलिक एसिड हमें पता है, स्पेशली इन प्रेग्नेंट लेडीज और इन द लैक्टेटिंग कंडीशन, फॉलिक एसिड हमें रिक्वायरमेंट है. आयरन फॉलिक एसिड इज अ बेसिक वन जो फीटल ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होता है, स्किन के लिए हमें चाहिए होता है. Ambani, All can these, you be a little louder? yes please. Okay, next slide please. Let's come to vitamin C. विटामिन सी ऑब्वियसली इट्स अ कोलाजन फॉर्मेशन, जो हमारी बॉडी में कोलाजन फॉर्म करता है. विटामिन सी इज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट. विटामिन ई इज इम्यूनिटी बूस्टर. नाउअडेज इज बिकॉज ऑफ कोरोना वी आर हेयरिंग कि आप विटामिन सी लीजिए, विटामिन ई लीजिए, बिकॉज ऑल दीज आर अ गुड सोर्सेज ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर एज वेल. दे आर परफॉर्मिंग अ वेरियस फंक्शन एज अ विटामिन सी. एज आई सेड, कोलाजन फॉर्मेशन है. कोलाजन इज अ प्रोटीन फॉर्म which helps for the डेवलपमेंट ऑफ इट. रेस्ट इज कि इट इज, अगर आपको वुंड हीलिंग अगर का है तो उसमें भी आपको विटामिन सी बहुत जल्दी हेल्प आउट करता है. मैंने आपको बोला था कि अगर आपको नील वगैरह आपकी बॉडी में दिखते हैं तो इन दैट कंडीशन इट्स अ साइन ऑफ कि देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन योर डाइट. तो अगर आपको लगता है कि मेरे को नील वगैरह है तो स्टार्ट हैविंग गुआवा, स्टार्ट हैविंग प्लम्स इन द सीजन, स्टार्ट हैविंग ग्रेप्स, स्टार्ट हैविंग ऑरेंजेस, लाइम्स, आंवला. ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ द विटामिन सी and start having this as a, it's an immunity booster. Hello, am I audible? Yes, you are. Sorry, Okay. there was some disturbance. Yeah. So we were talking about vitamin C. अगर इनका डेफिशिएंसी होता है विटामिन सी का, तो ऑब्वियसली वी नो कि हाँ, स्कर्वी, द गम्स में स्वेलिंग आ जाता है, ऑब्वियसली इम्यूनिटी हमारा कम हो जाता है, एज वेल जो आपका कोलाजन फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता है. और साथ ही साथ यू विल फाइंड कि विटामिन सी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द आयरन एब्जॉर्प्शन. येस, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, हमारा आयरन अगर हम लोग प्रॉपर ले रहे हैं, स्टिल यू फाइंड कि आयरन लेवल्स तो मेरे प्रॉपर नहीं है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ कि आप
का जो विटामिन सी है आप वो प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, दैट इज कि एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारा विटामिन सी अगर डाइट में प्रॉपर नहीं है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा हमारा. So it is required for the absorption of iron as well. So have good amount of vitamin C if you for the immunity, for the iron absorption, for all these things, and even for skin also. It gives a glow to your skin. It is for अगर हमें कई बार क्या होता है कि itching हो रहा होता है skin में, that is because also one of the reason could be vitamin C deficiency, and that is Ami, can you unmute yourself, please? hello. Yeah, we Hi, can we hear can you, hear Ami. you. Yeah. Yes. Go on. Next slide, please. Minerals, as in this is another micronutrient, minerals, and most important, as we know, I haven't covered all the minerals, but the major minerals I have covered here. That is your, first of all, if I talk about iron, obviously that is one of the major mineral which we require for our body, and even like anemia we have heard of कि अगर iron की deficiency है उसकी वजह से anemia हो जाता है, that is required for the different functions in the body, as in, and iron के sources हमारे cauliflower cabbage, cauliflower leaves हो गया हमारा, even हमारे other sources greens हो गए हैं, and please yes, spinach हम लोग को एक बहुत बड़ा myth है कि spinach is a good source of iron. No, it's a big myth कि spinach is your good source of iron. No, it is not at all. उसमें आपका only 1.14 milligram of iron है, जो basically हमारा almost nil बराबर होता है, क्योंकि हम लोग अगर in a day हमारी जो requirement है, that too also 100 gram of spinach gives you 1.14 milligram, जो हमारा almost ना है. इससे better है you can switch to other sources, and even lotus stem, that's an excellent source of iron. That is cauliflower greens is excellent source of iron. Ragi, jiska I forgot to mention, ragi ho gaya, bajra ho gaya, these are good source of iron. Then these you can include in your diet. And next slide please. Iodine, if I come to आयोडीन, यूजुअली जो हमारे सी साइड एरियाज में रहते हैं उनको एज एन इतना नहीं होता है, बिकॉज आयोडीन इज प्रेजेंट इन योर सी वाटर as well as seafoods maybe, but those who are not living in that area, then in that condition आयोडीन के हमारे डिफरेंट सोर्सेज हम लोगों को मिल जाते हैं. दैट इज़ योर गार्लिक, दैट इज़ योर, ऑब्वियसली आजकल हमारा आयोडाइज सोल्ट इज़ देयर इन द एरिया, सो हम इसके थ्रू, या फिर फिश हमारा हो गया, इसके थ्रू हम लोग अपना आयोडीन का रिक्वायरमेंट इजीली पूरा कर सकते हैं. इवन एज एन आयोडीन बेसिकली इज़ रिक्वायर्ड फॉर द थायरॉक्सिन हार्मोन, जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है उसके लिए हमें आयोडीन चाहिए होता है. दैट इज़ अ T3 hormone, T4 hormones, all these hormones require iodine, as well as for the, अगर जिनको thyroid का issue है, whether hypothyroidism or your hypothyroidism, that is some or other way there is a deficiency, or that could be because of iodine only. Next slide please. Zinc for the healthy immune system, obviously for the repair of tissues, even for skin, अगर आपको glowing skin चाहिए, even for the जो आपका mucous membrane होता है उसके लिए we need the zinc, उसके लिए we need zinc, and zinc being a small, we need a lot, a good amount of zinc, as in we know कि zinc is found in mushroom, zinc is found in your लार्ड, बीफ उसमें मिल जाता है, हमारा पीनट्स में, यूजुअली हम लोग पीनट्स भी आजकल अवॉइड करने लगे हैं बिकॉज थिंकिंग कि इट्स हाई कोलेस्ट्रॉल. नो, इट इज नॉट सो.
you need zinc in your diet to perform various functions. Even अगर आपको भूख नहीं लग रही है, that could be one of the reason कि आपको zinc का deficiency हो. So you need to find out कि okay शायद मुझे भूख नहीं लग रही है, तो that could be one of the reason of either zinc deficiency or could be because of vitamin D deficiency. So need to find out कि जिंक हम लोग प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं नहीं, क्योंकि इवन इट परफॉर्म्स कंट्रोल जो आपके नर्व्स का जो फंक्शंस है वो भी हमारा जिंक ही परफॉर्म करता है. जब हमारी ऑल दीज शिवरिंग ऑफ हैंड्स और द सर्वाइकल इश्यूज और दीज are the issues related to your nerves only. And nerves का जो मेंटेनेंस है, नर्वस सिस्टम का जो मेंटेनेंस है वो भी जिंक परफॉर्म करता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Calcium, as obviously we know, calcium is required for the absorption of phosphorus, for the absorption of for the absorption of vitamin D as well. Sorry, vitamin D is required for the absorption of calcium, and even calcium if we require for the teeth, for the bones, उनका metabolization अच्छा हो, even for the repair of your जो आई शुड से कि जो आपका सेल्स होता है उसके लिए भी हमें कैल्शियम्स की रिक्वायरमेंट होती है. आपकी बॉडी में एक बैलेंस मेंटेन करता है, एसिड बेसिस का बैलेंस मेंटेन करके रखता है. साथ ही साथ जो आपका एज एन मसाज होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. अनदर फंक्शन परफॉर्म स्केलेटन की डेवलपमेंट के लिए हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, बोन टीथ प्रॉपर्स के लिए. यहाँ तक कि अगर स्पेशली इन ग्रोइंग एज हमें कैल्शियम की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज वो हमारी ग्रोइंग एज है और उस टाइम पे हमें कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है. इट कैन बी डेफिशिएंसी उसका जो सेम होता है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, दैट इज योर रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस और योर टेटनेट एक्ने एज आई सेड, जो आपके शिवरिंग ऑफ हैंड्स में हो या जब हाथ में सूजन या कुछ आ जाता है, दैट कुड बी आल्सो बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इसके अच्छे सोर्सेज हैं, रागी इसका अच्छे सोर्स है, बार्ली इसका अच्छा सोर्स है, एंड लॉट थिंग्स यू कैन गो फॉर. यहाँ तक कि जो भी आपकी ग्रीन्स हैं उसमें भी आपको अच्छा कैल्शियम सोर्स मिलेगा, बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ द सॉइल जिसमें हमारा कैल्शियम प्रेजेंट होता है. तो इसीलिए आप ग्रीन्स को भी कैल्शियम में काउंट कर सकते हैं. इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम आल्सो. नेक्स्ट प्लीज. Factors affecting your lifestyle if I come to. Yes, what factors जो हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ योर ऑक्यूपेशन जो हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है. इफ आई टॉक अबाउट ऑक्यूपेशन, कि आप सेडेंट्री वर्कर हैं या आप मॉडरेट वर्कर हैं या आप हैवी वर्कर हैं, तो ये आपका ऑक्यूपेशन है. अगर आप ऑब्वियसली सेडेंट्री वर्कर हैं एंड यू आर ईटिंग अ लॉट, अगर आप बैठे बैठे खाए जा रहे हैं तो एनी हाउ वो आपको फिट करेगा. दैट कैन लीड टू ओबेसिटी, दैट कैन लीड टू हार्ट इशू एज वेल, क्योंकि अगर आपका बैठे बैठे खा रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, तो वेट बढ़ने से यू हैव लॉट अदर प्रॉब्लम्स और अदर इशूज. तो इन दैट सिचुएशन आपका सेडेंट्री मैनेज कर वर्क डिपेंड करता है. साथ ही साथ अगर आपका लाइफस्टाइल में ऑक्यूपेशन है सेट, कि अगर आप बैंकर हैं, इफ आई टॉक अबाउट, अगर आप बैंकर हैं तो आपका पूरे दिन बैठने का काम है एंड यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग एंड लंच इन अराउंड 2 or 3 टाइम, और फिर शाम को सीधा 6 बजे खा रहे हैं, तो यू आर मेकिंग अ लॉन्ग गैप बिटवीन द मील एज वेल. यू आर having a 3 big meals, which is not ideally good. Ideally you have to take small and frequent meals for a better lifestyle. हम अपने बहुत सारी कंडीशंस में, अगर हमारा PCOD है, अगर हमारा हेल्थ इशू है, हम उन कंडीशंस में आपको बोलते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, देन ओनली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि यू विल बी ग्रोइंग टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स अ हेल्दी लिविंग. सो अगर आप अपने लाइफस्टाइल की तरफ देखिए कि आप किस तरीके का लाइफस्टाइल एक्चुअली आप जी रहे हैं. क्या आपका बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है एंड यू आर हैविंग अ लॉट थिंग्स विदाउट नोटिसिंग. हम टीवी के सामने बैठे हैं एंड वी आर जस्ट ईटिंग, सो ऑब्वियसली दैट इज आल्सो नॉट अ गुड वे ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल. Next come to your eating patterns. If I talk about, that is your first if I talk about dieting. आजकल लोगों में बहुत dieting का चल रहा है.
either they are doing keto diet, either they are doing vegan diet, or they are doing your crash diets, or they are doing military diets. There are a lot of diets they are following, but the best way to a healthy lifestyle is to have a balanced diet. Don't go for any particular diet which is asking you to eliminate certain nutrient from your diet, or it is asking कि जो आपका traditional है, मतलब 60% of carbohydrates, as I said, वो चाहिए, or that you are not having. Instead, you are more on fruits and vegetables. You are having 60 to 70% of fruits and vegetables in your diet, and just 10% of carbs, 10% of proteins, and 10% of fat in your diet. Then that is of no use, obviously. So same with keto diet. Keto diet is with more of fats, less of carbs, and less of proteins. Ideally, according to me, that's completely apna perspective hai, but even latest researchers also call कि keto diet is not that much is going to help you. जितना आप एक balanced diet लेंगे, that will cover up all your nutrient deficiency, और even अगर आपका as I said कि सब चीज़ का balance होगा, तो किसी भी nutrient की deficiency नहीं होगी. Even I ask my clients कि आप अपनी डाइट में ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, बट द थिंग इज कि आपको एक बैलेंस फॉर्म में लेना है. आप सब चीज़ लीजिए. आपको रोटी लेना है, आपको सब्जी लेना है, आपको चावल लेना है, आपको चीनी लेना है. यू कैन हैव एवरीथिंग. अगर आप अपनी डाइट में शुगर भी थोड़ा बहुत भी ऐड नहीं करेंगे, शुगर इन द फॉर्म ऑफ जैगरी और इन अदर फॉर्म डिपेंडिंग ऑन देयर थेरेप्यूटिक इशू, सो आप उस पर डिपेंड करता है. दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. क्योंकि अगर हमारी बॉडी में किसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होगी, then it can lead to ketosis. Then you will feel lethargy. Then you will feel कि okay, I don't want to work. Lack of concentration could be there. So these things can occur. So next time, if you are switching to any kind of diet, please don't go for any name diet. Yes, don't go for any name diet. Instead, go for a complete balanced diet which includes all the food groups. Next, if I talk about is your स्किपिंग मील्स. यस, बहुत आजकल ट्रेंड में है. मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ, स्पेशली विद द टीनेजर्स. दैट कुड बी रीजन, दैट कुड बी एनी रीजन. ईदर दे डोंट हैव टाइम, और ईदर दैट्स योर पीयर प्रेशर. कुड बी कि मेरी फ्रेंड नहीं ले रही है, ब्रेकफास्ट स्किप कर रही है, तो आई शुड ऑल्सो स्किप द ब्रेकफास्ट. और दे डोंट वांट टू, दे वांट टू बी इन फिगर, सो दैट्स व्हाई दे आर स्किपिंग द ब्रेकफास्ट. But that's not the right way कि you are skipping breakfast, you are skipping any kind of meal in your diet, whether your lunch or whether your dinner. डिनर भी आजकल बहुत लोग स्किप करने लगे हैं. दे आर ओनली हैविंग ग्लास ऑफ मिल्क, और दे आर ओनली हैविंग सैलड्स, और they are not having anything. So that's not the right way. You have to take all 3 meals, all 2 snack meals in a day. As I said कि 6 meal आपकी दिन में होनी चाहिए proper, a small and frequent one. So skipping meal is not any solution कि आपने skip meal किया and that will help you to lose weight. Obviously not. Even उसकी वजह से क्या होगा, आपकी cravings बढ़ेंगी. आप फिर उसकी जो आपको खाना चाहिए वो तो आप खा नहीं रहे हो, उल्टा आप और जंक ही ऑप्ट करोगे, या और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ आप ऑप्ट करोगे. So that should not be there. So don't go for any name diet, don't go for any skipping of meals. And next, if I come to is your you're eliminating, obviously. Next is factors affecting health. Priyanka, please be in this. Yes, thank you. Health issues, yes, obviously. One is your medical जो भी आपका medical disorders है. Medical disorders could be your आपको डायबिटीज का इशू है, या आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम है, या आपको एज आई सेड लिवर का कोई इशू है, फैटी लिवर है. अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ आपका फूड में चेंजेस होता है. बट एज आई सेड, हमें हर डिजीज का एक पैटर्न हम लोग रिकमेंड करते हैं, दैट यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल. अगर आप ज़्यादातर देखेंगे, ज़्यादातर उन्हीं लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं हु हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और who are like there's some certain deficiency in their diet. हम लोग जंक ही बहुत ऑप्ट करते हैं, हम बहुत फ्राइड लेते हैं, ये लेते हैं, बट देयर वी आर नॉट जस्टिफाइंग टू ourselves.
तो हमें हेल्थ इश्यूज का भी बहुत ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमारे हेल्थ इश्यूज हमें हमको अफेक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट इफ आई कम टू इज योर गैस्ट्रो, यस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स इज योर जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया का इशू है या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे ब्लॉटिंग होता है या एसिडिटी है या रिफ्लक्स है. बहुत कॉमनली हम लोगों को एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन का सबसे ज्यादा इशू होता है कि हर दूसरे दिन सेकंड पर्सन इज आस्किंग ओके व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर द एसिडिटी और व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर द कॉन्स्टिपेशन. सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल. अगर you are not including physical exercise, if you are not including right amount of fiber, if you are not including right amount of carbohydrates in your diet, that can lead to that can lead to constipations or acidity. If you are including more of fried fats or more of fried fats, then also it can lead to acidity. So you have to be careful. You have to choose a healthy option for a healthy living. That's in your hand. आपकी हेल्थ आप ही के हाथ में है. आपका खाना आपकी हेल्थ बताएगा. वॉट एवर यू आर ईटिंग वो बताएगा कि हाँ आप कहाँ तक हेल्दी खा रहे हैं, कहाँ तक हेल्दी रह रहे हैं, कहाँ तक नहीं. नेक्स्ट इफ आई कम टू इज योर इम्यूनिटी. एज आई सेड कि इम्यूनिटी हम लोगों की आजकल क्या बहुत हम लोग दादी नानी को देखेंगे, दे आर स्टिल इन गुड कंडीशन. अगर हम अपने आप से कंपेयर करेंगे तो दे आर मोर एक्टिव and it is true, they are more active than us. क्योंकि उनकी इम्यूनिटी हमसे बहुत बहुत बेटर है. they were first of all obviously जो वो खाते थे वो फ्रेश खाते थे, वो होममेड खाते थे. आज हम होममेड ही नहीं खाते हैं एंड हम फ्रेश ही नहीं खाते हैं. हम लोग प्रिजर्व चीजें खाते हैं, हम लोग पैक्ड चीजें खाते हैं. हम लोग विल बी लाइक कि ओके सजेशन बेसिस पे लेते हैं. वी डोंट हैव टाइम टू कुक. सो ऑल दीज आर थिंग्स कि हम लोग करना ही नहीं चाह रहे हैं. और हम लोग की कंपैरेटिवली इम्यूनिटी बहुत वीक है अगर हम अपने सीनियर सिटीजन से देखें. आज हम लोग एक काम करते ही बहुत जल्दी थक जाते हैं. नॉर्मल अगर हम एक स्टेयर्स चढ़ जाते हैं, बहुत लोगों की कंप्लेन आती है कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, मैं एकदम से खड़े होते हैं तो, या मैं 2 स्टेयर्स थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ गए तो मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज हो गया. तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि आपका इम्यूनिटी बहुत वीक है. और बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चे आजकल बीमार पड़ने लगे हैं. पेरेंट्स का कंप्लेन आता है मेरा बच्चा, मैं इसको सब चीज़ देती हूँ, स्टिल वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. क्योंकि इम्यूनिटी बहुत वीक है. इम्यूनिटी किस वजह से वीक है? बिकॉज यू आर नॉट फिजिकली एक्टिव, बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग होममेड्स, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग. सो ऑल दीज थिंग्स. सो नेक्स्ट टाइम इफ आपके दिमाग में ख्याल आए कि मुझे अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव करनी है, देन इन दैट कंडीशन आपको स्विच करना है होममेड की तरफ. पैकेट्स को नो करना है और जितना हो सके अच्छे अमाउंट में फाइबर, अपना वाटर इनटेक लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर लीजिए. दिस विल हेल्प यू. गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी, विटामिन ई लीजिए. दैट विल इम्प्रूव योर इम्यूनिटी एज वेल. मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वुड लाइक टू. मेंटल हेल्थ का इज इन सबसे पहले आई टॉक अबाउट मिथ्स. आजकल फूड्स को लेके बहुत मिथ्स हैं कि ये मत खाइए, इससे ये हो जाएगा, या ये खाइए आप बहुत पतले हो जाएंगे, या फिर किसी भी तरीके का हम सपोज द मेन प्रॉब्लम इज विद द अस ओनली कि हम लोग अपने आप से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगे हैं एंड दैट एक्सपेक्टेशन इज लीडिंग टूवर्ड्स एनी और अदर स्ट्रेस. मतलब हाउ I want to be fit. ये मेरा expectation मेरे से है. I want to be fit. I want to look good. I want to lose weight or I want to put on weight. मुझे वो देख के क्या कहेंगे, या I want to financially be rich or I want to buy this car or all these things stuffs. These are expectations from ourselves. अगर आप इनमें से कोई भी एक छोटी expectation उठा लें तो आप उसके लिए stress लेने लगते हो. आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, then what's the need? The main aim of your life should be that happy life that should be there. So if you compare yourself with any or other one, then in that condition आप कभी भी नहीं cover up कर सकते. आप अपने आप में अगर आप मिरर के सामने खड़ी होइए किसी दिन एंड प्रैक्टिस दिस कि ओके मेरे में क्या क्या बेस्ट क्वालिटीज हैं एंड क्या क्या बैड क्वालिटीज हैं, देन इन दैट कंडीशन यू विल रियलाइज कि ओके आप आई एम श्योर आप अपने आप में बुराइयां कम निकाल पाएंगे और अच्छाइयां ज्यादा निकालेंगे, क्योंकि बुराइयां हमेशा दूसरा बंदा हमारे में निकालता है और अच्छाइयां हम खुद निकाल लेते हैं. तो इन दैट सिचुएशन आप मिरर के सामने खड़े होइए, अपने आप को फील कीजिए कि आई एम गुड, मैं हर चीज में बेस्ट हूँ, और जहां आपको लग रहा है मेरे में कमी है, वर्क ओवर इट एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग.
जैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, द वर्ल्ड विल स्टार्ट लविंग यू. दैट्स द बिगेस्ट इशू. आजकल रिलेशनशिप स्ट्रेस हो रहा है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेस है, या स्पेशली बॉस का स्ट्रेस है, इतना सारा लोड दे दिया, या कस्टमर स्ट्रेस है. सो वो एक स्ट्रेस नहीं है, उसको आप एज अ ये लेने की जगह कि ये क्यों आ गया, क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ दैट स्टार्ट सेइंग ओके दिस इज माय वर्क, इसको एक वर्क की तरह ही हैंडल करेंगे, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब हम कैसे इन स्ट्रेस से, या क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम हेल्दी लाइफ की टूवर्ड्स वी कैन स्विच टू. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली बैलेंस डाइट. एक बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें 5-6 फूड ग्रुप्स हों आपके, इंक्लूडिंग एवरीथिंग. वो आप बैलेंस डाइट लेंगे, ऑब्वियसली विल फील गुड कि ओके मैंने आज अच्छा खाया है, अच्छा है. अगर आपको कुछ वैसा भी खाना है तो प्रिपेयर एट होम, होममेड लीजिए आप. पैकेट को से नो टू पैकेट्स, देन इट विल बी अ ग्रेट healthy choice, a healthy step towards a healthy living. Next, if I come to is your regular exercise. As I said कि आपको योगा, आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन, आपको अपनी डाइट में उसे सॉरी अपने एक डेली रूटीन में उसको इंक्लूड करना ही करना है इफ यू वांट टू बी फिट. क्योंकि आप 10 मिनट अपने आप के लिए निकाल सकते हो. आप ब्रश करना नहीं भूलते हो कि मुझे आज सुबह उठते ही ब्रश करना है, या आप मॉर्निंग में अगर सपोज स्कूटी से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, आप वो नहीं भूलोगे कि मुझे मॉर्निंग, तो क्योंकि आपका एक रूटीन बन गया है. सिमिलरली आप योगा के लिए या मेडिटेशन के लिए या नॉर्मल मॉर्निंग वॉक के लिए कम से कम थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए. अगर आप एक बार स्टार्ट कर देंगे दैट विल बी कि इन्फॉर्म कि हाँ ओके ये मेरा एक रूटीन बन गया है एंड आई have to do it for a healthy life. That will be a routine. Next is your, if I talk about, as I said, meditation, yoga. Now, avoid your fad foods. आजकल fad food is basically जो short time के लिए आते हैं and फिर चले जाते हैं. बहुत trend है fad foods का. Even biscuits का, if I talk about कि okay have these fiber biscuits or have these your oatmeal or these salads. ये एक फैट मूव वही है, फैट फूड्स हैं कि जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं, आपकी हेल्थ को आपको बोलते हैं कि ओके आप वेट लूज कर लेंगे, आप ये कर लेंगे, एंड वो फिर कुछ टाइम बाद चले जाते हैं. बट ओल्ड इज गोल्ड. अगर आप ओल्ड की तरफ देखेंगे तो आप फिट रहेंगे. एज आई सेड, आप दादी नानी नुस्खे को फॉलो कीजिए. जो दादी नानी लोग खाते थे, क्या खाते थे, उसकी तरफ ध्यान दीजिए. यू विल एंजॉय द फूड, यू विल एंजॉय योर हेल्थ. नेक्स्ट इज की सेल्फ लव. सेल्फ लव डजंट मीन कि अपने आप की खुशी के लिए दूसरे को परेशान करो. नो नो, प्लीज डोंट डू दिस. इंस्टेड सेल्फ लव इज है कि आप अपनी खुशी के लिए चीजें ढूंढो. आपको जिस चीज में खुशी मिलती है ना, आप वो करो. दैट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस. आपको आप किड्स के साथ एंजॉय कीजिए. अगर आप बहुत ज्यादा कभी फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप किसी चीज को लेके टेंस्ड हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, कम आउट योर होम, फाइंड आउट. या तो आप जो हमारे ऑर्फनेजेस होते हैं, यू कैन गो देयर. आप उनके साथ थोड़ी देर खेलिए, बैठिए, बात कीजिए. देयर यू विल एंजॉय कि ओके किड्स के साथ एक थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ. और द पर्सन हुम यू लव, एज इन की जो आपकी सुने अच्छे से एंड he or she can advise you good, या जिसका आपको लगता है actually that he or she is going to help you out to reduce my stress. या you can perform your any of the skill. You can do dance. अगर आपको डांस करके लगता है कि मुझे अच्छा लगता है तो go for dance. आपको लगता है कि मैं पेंटिंग करके I can feel happy, then go for painting or any other skill whatever you want to. इससे क्या होगा, you will come towards your skill as well, और साथ ही साथ आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा. आपका जो आपका अटेंशन है ना, वो उस स्ट्रेस से हटके किसी और चीज पे लगेगा. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू फॉर. नेक्स्ट इज इवन फॉर प्लान फॉर बेटर. लाइक जो हमारा क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी एक बहुत लॉन्ग गोल के लिए हम वर्क करते हैं. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द लॉन्ग गोल्स, प्लान फॉर द शॉर्ट टर्म गोल्स. शॉर्ट टर्म गोल्स इज एज किन ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे एक दिन ऐसा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, इंस्टेड ऑफ सेइंग I have to go for job. मुझे एक जनरल ले रहे हैं कि मुझे एक छोटे टेंशन लीजिए, मुझे आज इस जगह पे अपने आप को लाना है, तो यू कैन वर्क ओवर दिस. हम स्कूल्स में या कॉलेजेस में इंस्टेड ऑफ प्लानिंग कि मुझे टॉप करना है, आप शुरुआत कीजिए ओके मेरा जो जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स है, मुझे उसमें अच्छा रिकॉर्ड लाना है. इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ गोल कि मुझे टॉप करना है. सो दीज शुड बी योर शॉर्ट टर्म गोल्स. मुझे एकदम वेट लॉस नहीं करना है, मुझे हेल्दी रहना है, तो मुझे मुझे
वेट लॉस की जगह मुझे हेल्थ गेन करनी है। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे देन इट विल बी लो स्ट्रेस, आपको वहां पे स्ट्रेस इतना ज्यादा नहीं होगा। जितने आप लॉन्ग टर्म्स बनाते हैं उतने ज्यादा स्ट्रेस आपको ज्यादा होता है। मुझे कार लेनी है, इतना बड़ा एक इमेजिन करके आपने, ठीक है आपने एक लॉन्ग टर्म गोल लिया है उसका कि मुझे एक कार लेनी है, बट उसके लिए आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को धीरे धीरे अचीव कीजिए, उसकी वजह से स्ट्रेस आउट मत होजिए। नेक्स्ट इफ आई कम टू इज योर अवॉइड पैकेट फूड। एज आई सेड कि आप जो भी आपके पैकेट फूड्स हैं, आपका बिस्किट्स है, फाइबरस बिस्किट है, या आपका कुछ भी पैकेट्स है, सैंडविचेस आ रहे हैं, या रेडी टू कुक फूड आ रहे हैं, या रेडी टू ईट फूड आ रहे हैं, अवॉइड दीज थिंग्स। ये आप जो भी पैकेट फूड्स है, से नो टू पैकेट फूड्स, क्योंकि एज इन जैसे जैसे आपके पैकेट खुलता रहेगा आपको लगता है कि आपको पैकेट फूड हेल्दी है, नो इट इज नॉट। वो आपका वेट पुट ऑन या इल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। नेक्स्ट इफ आई कम टू इज योर फोकस ऑन गेनिंग हेल्थ इंस्टेड ऑफ गेनिंग वेट। हमें, आप अगर वेट गेन करना चाहते हैं इन दैट कंडीशन ऑल्सो, ये मत सोचिए कि मुझे वेट बढ़ाना है या अपना वेट कम करना है, ये सोचिए मैं पतली हूँ या मोटी हूँ, बट आई शुड बी फिट। मैं स्ट्रांग होनी चाहिए हूँ अंदर से, मेरी बोन्स, मेरी मसल्स, मेरा बॉडी फंक्शन जो है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलाइजेशन, डाइजेशन, सब एक प्रॉपर वर्क करना चाहिए। मैं लीन हूँ तो सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, लीन है तो लीन है, नो इशू विद द लीन। अगर आप मोटे हैं तो हैं, बट वेट एज इन मोटापा, आई एग्री कि बहुत डिजीजेस की तरफ है, बट द थिंग इज कि आप इस मेंटालिटी से चलेंगे कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, वो मेंटालिटी मत कीजिए। इंस्टेड ऑफ ये सही है मुझे हेल्दी रहना है, मुझे हेल्थ गेन करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक मैंने एक मील प्लान एक फॉर्म दिया है इफ फॉर अ हेल्दी लिविंग, कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग अगर आप करते हैं तो स्टार्ट योर मॉर्निंग विद योर सोक्ड nuts or any of the fruit. You can have breakfast with your idli, upma, poha or anything, but focus on the portion size most importantly. As I said, include protein sources in your breakfast. Have brunch, as I said, fruits ले सकते हैं, buttermilk ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। दिस इज अ शॉर्ट मेन्यू फॉर्म जो आप एक प्लान मैंने आपके लिए बनाया है। लंच में आप चपाती, ग्रीन वेज, दाल, कर्ड, एक बैलेंस्ड फॉर्म लीजिए। चपाती आपका कार्ब्स का सोर्स हो गया, दाल आपका प्रोटीन का सोर्स हो गया, ग्रीन वेज आपका विटामिन्स मिनरल्स का हो गया, एंड वेयर एज कर्ड इज फॉर योर प्रोटीन एज वेल एज अदर प्रोबायोटिक एंड योर फाइबर ऑल्सो। वेयर एज शाम को 4 से 6 बजे करीब आप मखाना ले सकते हो, पीनट्स ले सकते हो, या थोड़ा सा उपमा, कुछ भी, ग्रीन टी कुछ ले सकते हो। डिनर सेम विल बी एज योर लंच। दिस इज प्लान। नेक्स्ट प्लीज। Well, where you can contact me, here is my website, and my Insta page is there, Facebook, YouTube. Wherever you want to contact me for any queries, any question, you can contact me. Priyanka, can we have your question round? Thank you for this. Thank you, Ami. This was very useful. I'm going to ask, so Anubhav is going to be our Priyanka here today. Okay. Anubhav, please take over. Thank you so much, Ambani. This was a wonderful session. Lot of nutrition talks. मुझे तो भूख लग गई थी तो मैं 2 बार बीच में क्या बोलते हैं break That's लेके good. और let's have some questions. I also have a lot of questions on nutrition, Please. so I will also be asking. And if Sure. anybody has a question, please raise your hands, unmute your mic, and we can ask Ambani regarding your skin, your eyes, your hair, your personal health, anything you can ask, and general nutrition. So Ambani, how do you feel this? What is your thought on veganism, vegan nutrition? See, Mr. Anubhav ji, that vegan is basically on only the fruits or the plant sources only, vegetable or fruits or on the plant sources. But according to me, plant sources is not enough. You have to, as I said, balance should be there. So if you focus on balanced diet, then there will not be your animal products. अगर आप vegan diet को follow करते हैं, there will be no milk and milk products, there will be no meat or any your non-vegetarian, there will not be egg or any other sources. So
इस तरीके से आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की तरफ नहीं जाते। स्पेशली वेगन डाइट में व्हाट हैपन कि विटामिन डी हमारा जो है, एज आई टोल्ड यू, कि हमें वेजिटेरियंस को बहुत मुश्किल से, बहुत कम सोर्सेज होते हैं जो हमें मिलते हैं। अगर हमने वेगन डाइट फॉलो कर दिया तो देन इन दैट कंडीशन ऑब्वियसली हमारे पास विटामिन डी के सोर्सेज नहीं रहेंगे। सेम विद इवन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कि अगर हमने राइबोफ्लेविन का सोर्स, एज आई टोल्ड यू, मिल्क है, तो अगर हमने वेगन डाइट में एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ दिए तो मिल्क नहीं ले पाएंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं ले पाएंगे। देन you, according to me, one should not opt for the vegan diet. One should opt for the balanced diet, including your vegetables, fruits, your animal products, plant products, both. So, and what about then the chemicals and pesticides and heavy metals in the food and all that? So how do you like? Do you really even in think? the milk? Do you really think in fruits and vegetables we will not get any pesticides? Sorry. Do you really think that if we are following vegan diet, then in that condition, fruits and vegetables are free from pesticides? You're not audible, Ambani. Hello. Yes. Is it? Can you, Okay, I'm saying ki, do you really think ki if we are opting for the fruits and vegetables only, then there is no pesticides? No, I'm Obviously, of course not. But I mean, I'm saying ki, what about the chemicals and pesticides? Like, it's a different question, not about Okay, from the okay, okay, perspective of okay, veganism. okay. See, if we talk about normal packet foods or any other, they all have any or other kind of chemicals or your preservatives. Yeah. I'll be answering in two forms this question. One Right. with the chemicals and one with the pesticides. Okay, so this is कि अगर आप कोई भी packet food लेते हैं तो उसमें you will find कि they will say कि it's a low calorie. ठीक है, अब लो कैलोरी दे हैव मेंशन, बट कोई भी चीज को कम करने के लिए दे हैव एडेड समथिंग एल्स। अगर उन्होंने बोला है लो कैलोरी है, देन दे माइट बी एडिंग मोर ऑफ सॉल्ट इन दैट. If they are saying it is sugar free, then they might be adding more of calories or more of fat in that. तो अगर आप किसी पैकेट पे लिखकर देखते हो कि ये शुगर फ्री है एंड दे आर सेइंग, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पे देखते हो दे हैव एडेड आर्टिफिशियल शुगर्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, देन ऑब्वियसली दे आर एडिंग केमिकल. कोई भी चीज जिसमें आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज हो रहा है या केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहा है या एनी काइंड ऑफ fats use हो रहा है, your hydrogenated oil, your trans fat, then it is not at all your natural. So chemicals पे ही हमारा ज़्यादातर सब food product industry depend करता है. If I come to pesticides, तो अगर आपका fruits and vegetables का है, उसको आप कम से कम आधा घंटे के लिए सेपरेट पानी में, अगर आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेकर आते हैं तो आप उसको आधा घंटे के लिए एक सेपरेट बाउल में आप उसको सोक करके रखिए एंड लीव इट फॉर दैट. आप उसको फिर नॉर्मल रिमूव करके नॉर्मल वाटर से उसको वॉश करके, नॉर्मल रनिंग वाटर में वॉश कीजिए एंड उसको क्लॉथ से पहुंच के आप उसको इजीली यू कैन हैव. उसका 70 to 80% ऑफ पेस्टिसाइड्स विल जो आपका इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स है वो वहां तक रिमूव हो जाएगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट योर मिल्क, जो आपके पैकेट मिल्क्स आते हैं या जो भी है, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर आल्सो कि अगर आप के पास सोर्स है देसी गाय या काउ और बुफलो का सोर्स है नेचुरल का, देन हैव दोज मिल्क, बिकॉज एक्चुअली दीज companies, food industries, or whether a milk or some, they are adding preservatives to the food, and which is obviously not healthy for us. Right. So, Neeraj has some nice questions. Neeraj, please unmute yourself. Yeah. Okay. Good evening, ma'am. Good evening. Madam, my first question, you said regarding stress. Okay. Avoid supplements. Avoid supplements. So what needs to be consumed? Okay, to avoid stress, yes, of course, don't take supplements. ठीक है. Instead, if you are more on tea or coffees or on coca or on all these carbonated beverages, then please उनको आप simply buy कर दो. पैकेट फूड्स को बाय कर दो. आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इन चीजों को बाय करोगे, यू विल फील कि आप चाय की जगह, कॉफी की जगह यू विल स्विच टू नींबू पानी और शरबत और योर शेक्स, मिल्क शेक्स. देन जब भी आपको स्ट्रेस होता है आप कॉफी
चाय की तरफ भागते हैं, आप उसकी Right, जगह सीधा right. नींबू पानी ऑप्ट करो, या उसकी जगह लस्सी ऑप्ट करो, या बटर मिल्क ऑप्ट करो। क्योंकि जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है हमारा, दैट इज योर स्ट्रेस हार्मोन, वो हमारा जब हम कैफीन बेवरेजेस लेते हैं या कार्बोनेटेड बेवरेजेस लेते हैं वो और शूट अप होता है। तो अगर आप ऐसे में बटर मिल्क या मिल्क का कोई प्रिपरेशन, दैट इज योर कोई शेक फ्रूट के साथ लेते हो या नॉर्मल Hmm, फ्रूट ही ले रहे हो, देन इट hmm. विल रिड्यूस योर कॉर्टिसोल हार्मोन, योर स्ट्रेस लेवल। ठीक है। अगर आप साथ ही साथ कई लोगों को होता है कि हम लोग स्वीट्स ले लें, हमारा उससे स्ट्रेस कम हो जाता है, तो वो भी बहुत गलत तरीका है ना। हमें जब हमें अगर अचानक से बहुत ज्यादा लगता है तो उस टाइम पे स्वीट्स भी नहीं लेनी है। प्रेफर फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और दीज बेवरेजेस। सो दिस Okay, आर द fine. ऑप्शंस यू कैन ऑप्ट फॉर व्हेन यू हैव स्ट्रेस। Okay, my second question. Does Yes. eating food early in the evening by 7 p.m. or 8 p.m. is good? Yes, because there should be a gap of 3 hours at least in your dinner time and your bedtime. And now you'll say कि okay मैं अपना dinner तो 8 बजे ले लेता हूँ, but 8 से 10 के बीच में I'm not doing any kind of physical activity. If you are sitting on bed, then also it is not good. Have your dinner before last 8. Preferably कोशिश कीजिए 7 से 7:30 बजे तक आप ले लीजिए। अगर उससे लेट हो रहा है then आप जो 15 से 20 मिनट का गैप करके गो फॉर द इवनिंग वॉक। ठीक है, एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स, एंड दैट विल हेल्प यू आउट ऑब्वियसली, क्योंकि आप खाना खा के फिर आप बैठे नहीं हो। अगर आप खाना खा के लॉन्ग टाइम के लिए बैठे हो देन इट्स ऑफ नो यूज कि आपने चाहे 3 घंटे पहले खाना ले लिया हो या फिर आपने 1 घंटे पहले लिया हो। So have some of physical activity after dinner. This will help you out. और साथ ही साथ for a good sleep have milk at night. Okay, okay. Third question. Please. Any specific food to keep our eyesight constant? To keep eyesight constant, you can't have specific food, but to improve your vision, as I said, vitamin A is required as well as vitamin E. But yes, of course, there is exercise you can try to constant your eyes. uh, like you can take a pen, that is a very basic exercise you can do. You can take a pen and just put it मतलब अपने आप से थोड़ा सा उसको दूर रखें and try to focus both the eyeballs there on the pen and try to come to forward towards you Close. slowly and gradually Okay. like this. So this will help you कि जो आपका nystagmus का है problem या squintism का है, थोड़ा उससे cover up होगा, but you have to follow it daily. कम से कम दिन में 3 बार आप अगर ये exercise करते हो, that is going to help you out. Okay, okay. Madam, fourth question. Please. Does Jain food eating habit, no onion, no garlic, no potato, affects in any way? यस, क्योंकि हर फूड का अपना एक हेल्थ बेनिफिट है ना। सो पोटैटो इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स, ऑब्वियसली ट्यूबर्स है। कई बार क्या होता है हमें शुगर क्रेविंग्स हो रहा होता है एंड वी वांट कि हमें कुछ शुगर है, तो इन दैट आई प्रेफर कि इफ यू हैव शुगर क्रेविंग्स अचानक से, देन ऑप्ट फॉर द ट्यूबर्स। अगर आपने अपनी डाइट से ट्यूबर्स ही एलिमिनेट कर दिया, इफ यू आर एलिमिनेटिंग शुगर्स फ्रॉम योर डाइट, अगर सपोज जैनिज्म में जैन बंदे जैनिज्म में एंड साथ ही साथ वो डायबिटिक भी हैं, तो वो मीठा कुछ नहीं लेंगे, ट्यूबर्स में Right. पोटैटो वो नहीं लेंगे, देन व्हाट हैपन कि उनकी ना जो शुगर की क्रेविंग्स है वो बढ़ेंगी, पॉसिबिलिटी है। बट आई विल नॉट आंसर क्वेश्चन ऑन दिस क्योंकि ये रिलीजन का मैटर है। Right. बट यस, ऑब्वियसली मेरे अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू एवरी फूड हैज its own health benefits, so better not to avoid anything and साथ ही साथ किसी भी चीज का excess में भी नहीं लेना। Okay. Madam, last question. As a layman, I can't understand all your terms. Tell Okay. me in simple language. सुबह About दोपहर शाम और रात में क्या खाना और पीना है? एज आई मेंशन, मैंने अपने जो मील प्लान मैंने एक एग्जांपल के तौर पे हमने शेयर किया है अपनी पीपीटी में लास्ट में, Okay. उसमें मैंने Okay. वो एक ले मैन के लिए ही दिया है। सो उसमें दे विल बी लाइक कि आप मॉर्निंग जो अपनी शुरुआत कर रहे हैं वो अपने ड्राई फ्रूट्स के साथ शुरुआत करें, सोक्ड नट्स के साथ। ठीक है, जैसे Okay. आपका बादाम हो गया, अखरोट हो जी. गया, किशमिश हो गया, अंजीर हो गया, इनसे। और इफ यू कांट गो फॉर दिस, देन स्टार्ट योर डे विद any fruit, even bale juice. Nowadays it's a summer time, so you can start your day with bale juice. That is a good uh, boost, immunity booster, as well as it is helpful in giving you मैडम ये क्या है?
Sorry, ये बेल जूस, बेल व्हाट इज जूस दैट बेल इज जूस? योर वुड एप्पल। बेल के नाम से ही ये इंडिया में मिलता है, सिंपल बेल ये इसका हिंदी नेम है, अदरवाइज इंग्लिश नेम इज Okay, योर व्हाट, यस, वुड एप्पल। okay. You started with morning, फिर तो दोपहर. what नीरज जी, what we can do is हम लोग वो जो last slide है Okay, ना, वो fine, हम fine. share That you करते can हैं see, आपके yes. साथ, Sure, so sure, sure. so I there's no missed repetition. it, so I didn't know हाँ that. नहीं Okay, नहीं, मैं okay. सारे slides share करूंगी सबके साथ, Sure, तो sure. आपके पास सारी Okay, information आ जाएगी. okay, fine, fine. Thanks, ma'am. My questions are over. Okay, Thank you. So next question is by Mr. Malaya Pradhan. Malaya ji, please. Yeah, good afternoon, ma'am, and good afternoon to you all. Actually, my question is like, first of all, it was a fantastic presentation, and we came to know so many things about nutrition and all. So my question is like, is IF is good for our health? Intermediate fasting is good for our health? please pardon the question. Is IF good for our health? Intermediate fasting. Actually, few days back, yeah, tell me. Sorry. According to me, I don't prefer intermittent fasting because it is like कि 16 hours तक आपको भूखा रहना है. Ambani, can ठीक you है? be a little louder? Yes, according to me, it is not good intermittent fasting because आपको उसमें इस condition में 16 hours के लिए starve करना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, and which is not according to my rules. I prefer कि आपको हर 2.5 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लेना है. So depending on what therapeutic condition you have, we used to recommend diet accordingly. We used to recommend the plans accordingly. So intermittent fasting is not recommended by me. Hello. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, Got it. thank you. Ami, I have a question. Please. That's me. Hello. तो आपने जो बहुत सारे examples दिए, like things that help with everything, protein, carbohydrates, उसमें wheat बहुत बड़ा Role play role करता play है. करता है. Now आप कोई ऐसा ingredient है which can replace wheat for people जिनको gluten intolerance है? Yes, you can have rice. You can have rice is like, now you'll say कि rice हम चपाती form में कैसे खाएं. आप rice flour से you can have chapati, you can have corns, maize, मक्का का आटा you can have. So these things are basically gluten free. You can opt for these. Rice सबसे best option है for this if you have a gluten intolerance problem. Am I audible ना? Yes. So you can opt for the rice. Rice is like आप उससे sweet भी बना सकते हैं, आप उससे salty भी prepare कर सकते हैं. You can make the pancake from that. You can make a chilla from that. You can make a chapati from that. So there are a lot options. But basic as I said कि अगर आपको जो wheat role play करता है major, उसके opt में अगर आप उसके option में अगर चाहते हैं, that will be rice. Okay. Great. Yes. Thank you. My pleasure. So Ambani, my question is, what about coconut butter? What is your thoughts on coconut butter and stevia? And Stevia I'll not prefer because it is obviously next at the end key artificial sweetener. Instead, what happened ki diabetes people ko we are most of the dietitians are recommending ki don't go for skip mangoes from your diet, skip lychees from your diet, and skip chikus or grapes from your diet. These are basically your natural real your region जो आपके natural sugars हैं आप उसके हैं तो natural sugar हैं आपके ये आप इसको लीजिए instead of आप जो आपका स्टीविया हो गया या आपका शुगर फ्री के और हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं डोंट गो विद दिस. या फिर अगर आपको कभी शुगर फ्री खाने का भी वो है तो आप मीठी तुलसी डायरेक्ट एक हर्ब है आपको किसी नर्सरी में इट विल बी अवेलेबल. आप मीठी तुलसी आप ले सकते हैं, वो यू कैन ऐड फॉर योर चाय इफ यू आर अ डायबिटिक. कि अगर मुझसे बिल्कुल ही अभी आप रिसेंट डायबिटिक के वो हैं
देन इन दैट कंडीशन आप नेचुरल जो मीठा तुलसा है आप वो ले सकते हैं, या फिर आप बीट रूट वगैरह जैसी चीज़ें ऐड कीजिए, उनसे आप स्वीट प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स एंड स्टिल यू आर डायबिटिक, तो मीठा खाने का मन है, आप उसमें कोई भी आर्टिफिशियल शुगर मत डालिए, आप चीनी मत डालिए, हनी नहीं डालिए, जैगरी नहीं डालिए, बट यू कैन प्रिपेयर थिंग्स फ्रॉम दोज थिंग्स। इवन यू कैन ऐड ट्यूबर्स आप कुछ हद तक ले सकते हैं, आप पोटैटो खा सकते हैं, याम खा सकते हैं। इट्स अ बिग मिथ कि हम लोग डायबिटिक कंडीशन में ये चीज़ें नहीं खा सकते। यू कैन हैव, but the thing is कि you can have all these in limited amount बस। So, my last question to you would be is like, a lot of people with albinism complain of sudden headaches, frequent headaches, or So, what foods would you recommend at that time in case of a headache, and also what foods can be taken to avoid or minimize that headache episodes and all? ओके, यूजुअली हेडेक के हमारे वैसे बहुत बहुत सारे रीजंस होते हैं। इट कुड बी बिकॉज ऑफ माइग्रेन, इट कुड बी बिकॉज ऑफ माइग्रेन, और इट कुड बी हम लोगों ने स्क्रीन वर्क बहुत ज़्यादा किया है जो आजकल हम लोग बहुत करते हैं, या बिकॉज ऑफ स्कॉचिंग सन, क्योंकि गर्मियों में हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेडेक का इशू होता है। और बिकॉज ऑफ एज एल्बिनिज्म का हम लोग का कंडीशन ये होता है कि हम लोग आइस पे बहुत प्रेशर पड़ता है स्क्रीन वर्क में या कोई और वर्क में, तो इसकी वजह से। तो इन दैट कंडीशन हैव हैंडफुल, और अगर आप उसमें बादाम ले सकते हैं या कैशू ले सकते हैं, बट हैंडफुल ऑफ अमाउंट इन अ डे। सपोज मुझे अभी जस्ट हेडेक हो रहा है और आई वांट कि इंस्टेंट मुझे कुछ चाहिए कि मेरा थोड़ा सा हेडेक रिलीफ हो, इन दैट कंडीशन हैव 4 to 5 आलमंड्स और 4 to 5 कैशूज, दैट विल गिव यू रिलीफ फ्रॉम दैट हेडेक। एज वेल लोगों को बहुत ज़्यादा है कि मैं चाय पीऊँगी तो मुझे हेडेक जो मेरा है वो ठीक हो जाएगा। इट्स नथिंग, इट इज़ जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंकिंग कि आपका चाय पीने से आपका ये कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप इंस्टेड बटर मिल्क वगैरह प्रेफर कर सकते हैं। जैसे गर्मी है, एज आई सेड, आप बाहर से आए हैं अचानक और आपका बहुत सर दर्द हो रहा है, फिर भी नहीं कम हो रहा, तो इन दैट कंडीशन हैव बटर मिल्क, so that is going to help you out. Almonds, as I said, help you out. और साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो start your day with your 4 raisins and 1 fig, that is अंजीर, that will also help you. So we have one more question from Archit Arya. Archit, go ahead. Okay, yes. हेलो, गुड इवनिंग मैम। Hi, good evening. मैम मॉर्निंग में सुबह जो शुरू करें तो वार्म वाटर के साथ करें या हनी वाटर के साथ? No need of honey water. If you want to be healthy, आप normal water भी ले सकते हैं। और if you have any therapeutic condition, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, then हम लोग के अलग अलग डिटॉक्स वाटर होते हैं for that. It could be your fenugreek water, it could be your coriander water, it could be your cumin water, अलग अलग waters होते हैं। But if for a healthy living, normal water is enough, no problem. ओके मैम, Normally और वो- दूसरा ये ऑलमंड्स को हम भिगा के लें या फिर वैसे? In summers especially have soaked one, even in winters also you can have soaked one. The thing is कि जो हमारा almond का peel होता है उसमें हमारे inhibitors present होते हैं जो actually inhibit करते हैं हमारे other nutrients के absorption में। तो that's why we used to ask कि आप soak almonds लीजिए and उसको peel off करके लीजिए, ठीक है? Thank you. Dr. Sab, what foods can be taken to uplift the mood over a quick, quickly, and or what about chocolates? What is your thoughts on chocolates and coca? See, if you want to uplift mood, then don't go for chocolates. If you want for like, okay, I'm happy now, I want to eat chocolates, then in that condition you can eat chocolates. But just to uplift your mood, don't go for chocolates. In that condition, take a bowl of curd or 2 spoon or 3 spoons of curd or yogurt. Have that, add a little bit of salt or black pepper, or you can have add fruits in that. जिस तरीके से आपको एक ठंडा कूलिंग रिफ्रेशिंग हो वो आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा इंस्टेड ऑफ आप एकदम से मूड चॉकलेट्स लें। तो चॉकलेट्स हैव, मैं चॉकलेट्स को मना नहीं करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव डार्क चॉकलेट्स एंड सेकंड थिंग हैव देम व्हेन यू आर हैप्पी, नॉट टू अपलिफ्ट योर मूड। Right. So lovely. I mean, Thank you. such a wonderful session and a lot of questions are answered. So we really thank you, and we would like to do one more session with you sometime in future. Thank And you. any questions by any of the members, you can always go ahead. She's one of our group members only. Yes. So
Thank you to the volunteers, Ms. Priyanka Heda and Ms. Ishita Unadkat from London. We'd like to wrap up the session and big round of applause for everybody. Thank you so much. Thank you. Thank you. So we can always get together for the informal session. Any chat, Anyways, talk, thoughts. You can always reach out to me and Ishita also and Priyanka also. Yes. thank you. It was